Hello everyone, good evening. Welcome to Pro Trainees Masterclass on Building Design, Drawing and Structure. I am Pallavi, your host for today's session. Let me give you a brief introduction about who we are. Pro Trainee is an NSR cell, IIM Bangalore pre-incubated EdTech startup. We are registered with Startup India, Startup Odisha and OCF. Landing skill requisite which precisely fit market demand, it's tougher than landing a job itself. That's where we come into a play. We prepare engineering students to be industry ready by training them for the essentials required in the field. We believe that skill building is an extensive process which require detailed and practical knowledge with the help of our experienced experts. Our only aim is to build a skilled workforce for the civil engineering industry and to create thought leaders of tomorrow. Pro Trainee brings to you an evolving industry-ready environment to tackle the ever-shifting business scenario. As an educational platform creator, we upskill civil engineers in technical domain as per current industry trends. From theoretical concepts like structural engineering, bridge engineering, to software trainings like Oracle Primavera, ETABS, AutoCAD, we offer 360-degree holistic development required for a civil engineer to become a skilled industry professional. We recently conducted an industry-ready long courses on tendering, billing, Primavera, highway, engineering, etc. And good result in this session has motivated us to go beyond our boundaries and get more for all of you. To be updated with our upcoming amazing courses, go and follow our Instagram, Facebook, and LinkedIn profile by the name Pro Trainee. Now, I would like to introduce our expert, Mr. Rahul Kumar, sir, who have joined our forces to make everyone industry ready. We welcome you, sir. I would now like to show an introductory video of our company. Operation Department, can you please share this screen? Thank you. Now, I would request sir to start with the session. Over to you, sir. Am I visible? Why it's not clear? Hi Pallavi, am I visible? Yes, sir, you are visible and perfectly audible. Okay. Thank you Pallavi and the Pro Trainee family for giving me this session. How are you guys? Rahul this side, you are instructor. And today we are going to discuss about all the details and the drawings about the building structure. We will conduct all the architectural drawings, all the structural drawings, and the estimation part also. अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कौन कौन से बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं तो, और अगर आप किसी कमर्शियल कंपनी में वर्क करना चाहते हैं एज अ सिविल इंजीनियर तो तब भी आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी. सो सारी चीजें ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, आपके फ्यूचर गोल से रिलेटेड, आप व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड टू अचीव योर गोल, सारी चीजें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. सेशन प्लीज बीच में छोड़ करके मत जाइएगा क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीजें भी मैं बताने वाला हूँ जो कि आपने शायद आपको पता भी ना होगी, क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि एक जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद होता क्या है कि उसके बाद हम 3 से 4 साल हम किसी सिविल इंजीनियर के पास या फिर कंपनी में वर्क करते हैं, उसके बाद हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं. मैं इस सेशन में कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं और इस कोर्स में ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन
कंप्लीट करेंगे उससे पहले ही आप स्किल्ड होंगे। आपको जरूरत से ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं जो लैंग्वेज इस तरीके की यूज करूंगा कि ताकि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा अटैच कर पाऊं। ओके, अगर आपको बीच में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। जो हमारा मेन सेशन है वो जनरली, वेट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Screen is visible. Yes, sir, it's visible. Okay. Building design and drawing. अगर आप सिविल, जब जैसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके पास जनरली आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हमारा होता है बिल्डिंग को लेकर के। अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं तो, बट हम प्लेटफॉर्म बिल्ड तो कर लेते हैं, ऑफिस तो खोल लेते हैं, बट हमारे पास इतनी रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती या फिर नॉलेज नहीं होता, या तो फिर हम जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि हमें कौन कौन सी ड्राइंग्स बनाते आना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हमको रिक्वायर्ड है। तो इस सेशन में मैं जितनी भी डिटेल ड्राइंग बनती हैं, अगर एक प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, देखिए सबसे बेस्ट पार्ट इस सेशन का ये होने वाला है कि जनरली आप देखेंगे कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब पे आप सीखेंगे, कहीं पे भी सीखेंगे, किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर के सारी की सारी ड्राइंग, कभी भी कोई भी मैंने कोई भी ऐसा कोर्स नहीं देखा कि जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर के सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और सारी की सारी स्ट्रक्चर और उसी का एस्टिमेट करवाया हो। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बट इन दिस सेशन, इन दिस कोर्स, I will provide you all the detailed drawing and I will explain you all the aspect and the prospect behind all the drawings कि चाहे वो आर्किटेक्चरल की हो, चाहे स्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एस्टिमेट का पार्ट हो। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, अगर आप, मैं जो मेजर अभी जो फोकस जो मेरा एरिया है वो मैं मेजर करूंगा कि अगर आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं तो केवल सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसमें आप खुद का ऑफिस भी ओपन कर सकते हैं और आप चाहे तो कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क भी कर सकते हैं। केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है। तो मैं जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो फोकस इसी चीज पे रहेगा कि अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको डिटेल्ड ड्राइंग देना होगा। ओके, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो। मैं बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि टाइप ऑफ बिल्डिंग्स क्या होती हैं, इस तरीके के मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक्चुअल, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी डिटेल्ड कितनी ड्राइंग्स लगेंगी साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए, सारी की सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अलग होती हैं और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स अलग होती हैं। टोटल अगर आप करेंगे तो वो 18 से 19 ड्राइंग्स हो जाती हैं। तो सारी की सारी आपको एक ही प्रोजेक्ट पे बना करके मैं बताने वाला हूँ। ओके, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, एरिया ऑफ फोकस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 2 एरियाज पे हम आज फोकस करेंगे। अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं तब आपको क्या क्या स्किल्स आप में रिक्वायर्ड है जो कि आपको गेन करना होगा। अगर आप सिविल किसी कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तब भी आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं सिलेक्टेड स्किल्स बताऊंगा कि केवल आपने अगर वो चीजें सीख ली तो आप इंटरव्यू बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे, और जो कि आपके जो स्किल्स हैं उसको बहुत हायर लेवल पे लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो मेजर चीजें होंगी। ओके, अगर मैं एजेंडा की बात करूं,
इस प्रोजेक्ट की इस सेशन की बात करूं, इस कोर्स की बात करूं, तो ये 21 डेज का पूरा कोर्स होने वाला है, जिसमें डे बाय डे हम ड्राइंग्स को जिस जिस सीरीज में हमें रिलीज करना होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में हमको लेआउट की जरूरत है और हम स्ट्रक्चर में स्लैब दे रहे हैं। तो जिस स्टेज वाइज जो भी ड्राइंग्स हमको रिक्वायर्ड होंगी, उसके हिसाब से मैंने ये सेशन डिजाइन किया हुआ है कि फर्स्ट डे में हम क्या चीज सीखेंगे, सेकंड डे में क्या चीज सीखेंगे, थर्ड डे में क्या चीज सीखेंगे। ऐसे करके मैं 21 डेज का सेशन होने वाला है, ओके, जिसकी पीपीटी में अवेलेबल है। अगर तो प्लीज सेंटर पार्ट में मैं कुछ स्पेशल चीजें, स्पेशल एलिमेंट भी बताने वाला हूँ बिल्डिंग के, जिनको ऐड करने से आपकी बिल्डिंग की प्लानिंग औरों से अलग हो जाती है। ओके, फर्स्ट में आना चाहूंगा, अपना ऑफिस आपको बिल्ड करना है तो कौन कौन सी स्किल्स आप में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये सब डिस्कस करने के बाद जो 21 डेज का जो सेशन है, फर्स्ट डे में आप क्या सीखेंगे, सेकंड डे में क्या सीखेंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले, अगर आप खुद का ऑफिस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड है, मैं उस पे डिस्कशन करूंगा। ओके, the screen is visible, all of you? Yes, sir. Okay, थैंक यू। अगर आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं तो जब तक आपको मार्केट का नॉलेज ना हो, आपके एरिया का, क्योंकि आप स्टार्ट जब करेंगे तो आपके एरिया का नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि सभी एरिया के हिसाब से मार्केट के जो रेट्स हैं वो डिफर करते हैं, ड्राइंग्स डिफर करती हैं। आपकी प्रेजेंटेशन तो आपका पार्ट होता है, बट पता चला कि आपके एरिया में कुछ और रेट चल रहे हैं और आप कुछ और रेट कोट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको एरिया का नॉलेज होना चाहिए, आपके मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे क्लाइंट हैंडल करना है, कैसे आपको एग्जीक्यूशन लेवल तक लेकर के आना है उसको। सेकेंड इज एक्सट्रीम नॉलेज अबाउट द बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग प्लानिंग जो पार्ट है, बिल्डिंग प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का। सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, कोई भी काम आएगा, सबसे पहले आपको प्रपोज्ड ड्राइंग ही बनानी है। प्रपोज्ड ड्राइंग भी बोल सकते हैं आप उसको, कॉन्सेप्ट प्लानिंग भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल प्लानिंग भी बोल सकते हैं, जो कि हम सबसे स्टार्टिंग में बनाते हैं, जिसमें सारी आप वास्तु के हिसाब से चीजें जो आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं, किचन की बात करूं, आपका पोर्च एरिया की बात करूं, ओपन स्पेसेस की बात करूं, इसके लिए भी प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान रखने होते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको प्लानिंग में, जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो आपको कैप्टन माइंड रखना है, क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग स्किल सबसे बेटर नहीं होंगी तब तक आप क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन जो होगा आपका क्लाइंट से, वो आपको बिल्डिंग प्लानिंग पे ही होगा। सबसे पहले क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट होगा। ओके, लाइक यू, आप मेरे पास आएंगे, आई एम एन इंजीनियर, आप मेरे पास आएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट लेकर के, ओके, आप अपनी रिक्वायरमेंट लेकर के आएंगे आपके पास जो एरिया है, अब उसको आपको कैसे सारी चीजें सिस्टमेटिक करके ऑर्गेनाइज आपको करना है। ओके, तो ऑर्गेनाइज जितने अच्छे से आप कर पाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप मार्केट में जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग करके क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आप आगे कैसे ड्राइंग उसकी बनाओगे, क्योंकि क्लाइंट ही आपसे हैंडल नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी बिल्डिंग में, पूरे स्ट्रक्चर में और पूरी बिल्डिंग फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग का। अगर आप खुद का प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं तो अभी जो कॉर्पोरेट और जो वर्क करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी सारे सजेशंस दूंगा। ओके, तो बट पहले मैं
This third is must need to make all the architectural drawings and the estimate client handling skills would have to structural knowledge. अगर आपसे सारी की सारी ड्राइंग्स और एस्टिमेट नहीं बनेगा या नॉलेज नहीं होगा तो आप मार्केट में बिल्कुल मत उतरिए, क्योंकि आप ऑफिस तो ओपन कर लेंगे बट आपको एक्वायर नॉलेज नहीं होगा तो आप मार्केट में जैसे ही आपने ऑफिस ओपन किया और आप डाउनवर्थ हो जाओगे। आपको डाउन नहीं जाना है, आपको प्लस में ही चीजें जानी है। और अप में जाने के लिए आपका नॉलेज कैसे शो होगा? जब तक आप में नॉलेज नहीं होगा तो आप वो शो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले नॉलेज पूरा गेन करिए, पूरा सेशन अटेंड करिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं कि बीच में हाइड होने वाला है। जितनी पॉसिबिलिटी हो गई, जितना ज्यादा मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जितने अच्छे तरीके से कर पाऊंगा उतने अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी ड्राइंग्स एक्सप्लेन करूं, ताकि जब आप मार्केट में उतरें तो आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ओके, द फोर्थ इज बीबीएस आईएस कोड और मेजरमेंट। बीबीएस सभी को पता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल हम क्यों यूज करते हैं? बार बेंडिंग शेड्यूल होता है जो स्टील होता है, स्टील बिल्डिंग में कितना लगेगा उसको हम पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यूनिट वेट के हिसाब से चलता है, जिस डायमीटर के हिसाब से चलता है। वो भी कैसे बनाना है उसका स्पेशल फॉर्मेट है मेरे पास, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इन दिस कोर्स। कि बीबीएस तो आपको बनना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट बीबीएस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टील कि आपकी बिल्डिंग में स्टील कितना लग रहा है। आईएस कोड्स आपको बेसिक बहुत ही ये मान के चलिए कि प्रायोरिटी वाली अगर कोई चीज है तो बेस आईएस कोड ही है। चाहे आप खुद का ऑफिस ओपन करें, चाहे आप किसी कंपनी में काम करें, आईएस कोड भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। बट अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के लिए बेसिक जो आईएस कोड्स है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो सभी जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा 4, 5, 6, सबसे पहले तो उसको पढ़ना है और स्ट्रक्चर के लिए बेसिक पढ़ना है 2008। दो बेसिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको भी कैसे रीड करना है, उसमें मेन मेजर चीजें क्या क्या देखनी है वो भी मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। मेजरमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। मेजरमेंट क्या होता है? अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और आपको उसको रिबिल्ड करना है या फिर उसको रिनोवेट करना है, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट भी बहुत ही प्रिसाइज करना होता है, क्योंकि जब आप उसमें वर्किंग ड्राइंग बनाएंगे तो वो डिफरेंसेस सभी में आएगा। तो मेजरमेंट ऑल्सो इज अ मेजर थिंग। उसको कैसे ड्राफ्ट करना है वो भी चीजें मैं आपको स्किल बताऊंगा कि परफेक्ट कैसे करना है चीजों को। साइट एग्जीक्यूशन एंड द एक्सपर्टीज मटेरियल नॉलेज। देखिए साइट एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं तो साइट एग्जीक्यूशन का आपको नॉलेज और लेबर को हैंडल करने का जो एक्सपर्टीज है वो आपको जब तक आप साइट पर नहीं जाएंगे, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा साइट विजिट नहीं करेंगे, तो आप सोचें कि केवल मैं ड्राइंग्स बना लूं और मैं साइट पे जाकर के सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो ये कभी मत सोचिएगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आप साइट पे जाते हैं और आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर क्लाइंट के थ्रू जो कि आपसे नहीं बनता है, तो फिर वहां पे आपकी इमेज काफी डाउन होती है। ओके, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तब क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी में तो आपके बहुत सारे हैंड्स होते हैं कहीं ना कहीं, बट जब खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो सबसे जो मेन अगर मैं बोलूँ तो केवल आप ही हैं। आपके नीचे ही आपके हैंड काम करेंगे, चाहे आप फिर किसी को भी हायर करें, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करें, चाहे आप ड्राफ्टमैन को हायर करें, चाहे आप अपने अंदर इंटर्न्स को हायर करें, बट मेजर आप ही हो। तो सबसे पहले साइट एक्सपर्टीज कैसे गेन करना है, कैसे लेआउट करनी है, कैसे कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको पकड़नी है कि गलतियां ना, इसके लिए मैंने 100 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो कि सेशंस में लास्ट में मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा कि साइट में गलती कौन कौन सी होती है, मेजर गलतियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी निगलेक्ट करना है, कौन कौन सी कैप्टन माइंड रखना है, क्योंकि सीखने से ज्यादा गलतियां सीखना इंपॉर्टेंट है। आप साइट पे जाते हैं, कुछ चीज आपसे नहीं बनेगी, चलेगा, आप उसको बाद में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वहां पर गलती क्या हो रही है,
अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तब ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है आपके लिए, क्योंकि वो अगर गलती हो जाएगी तो वो एक बार हो गई तो हो गई, फिर उसको अगर तोड़ेंगे तो क्लाइंट आपके ऊपर, आपके हैंड पे आ जाएगी। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? The fifth thing is the submission drawing. What is the submission drawing? Submission drawing अगर कोई भी क्लाइंट होता है जो कि नया कोई प्लॉट एरिया खरीदता है, ओके, मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट किसी क्लाइंट ने खरीदा। अब उसको सबसे पहले तो उसको नक्शा पास करवाना पड़ेगा, मैप उसको पास करवाना पड़ता है नगर निगम से। तो नगर निगम में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको सबमिशन ड्राइंग बनानी होती है, जिसमें सारी डिटेल होती है कि बिल्डअप एरिया कितना है, सुपर बिल्डअप एरिया कितना है और कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, ताकि क्योंकि सभी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं सिटी अकॉर्डिंग टू सिटी। बट अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो जो दिल्ली का SOR चलता है और दिल्ली का हम मेजर मान के चलते हैं, तो उसमें भी 60% ही कवरेज है। तो कवरेज को हमें ध्यान रखते हुए ही ड्राइंग बनानी पड़ती है। सबमिशन ड्राइंग अलग होती है और साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रपोज ड्राइंग प्लानिंग जो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिस्कशन होगी, ओके, आफ्टर क्लाइंट डिस्कशन होगी, साइट पे जो एग्जीक्यूट होना है वो अलग होती है, सबमिशन ड्राइंग अलग होती है। ओके, अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो अदर लॉ, ग्राम पंचायत एंड दी हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड में मान लेते हैं कि आपके पास कोई बड़ी प्लानिंग आ जाती है, जिसकी मान लेते हैं कि 5 एकड़ में आपको प्लानिंग करना है, ओके, तो आपको कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे, कौन कौन से आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, कौन कौन किस किस अथॉरिटी से आपको पास करवाना होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं कि आपको ये 5 एकड़ आपकी कोई जमीन है, ओके, अगर उसको TNCP अप्रूव्ड करवाना है, आई एम बिजी, मेरा चाबी दो गाड़ी, पापा की गाड़ी की चाबी कहाँ? दीपक, आई एम ऑन। पापा की गाड़ी की चाबी कहाँ है? Very sorry for that, very sorry, I apologize. So आपको जैसे कि एक 5 एकड़ का कोई भी एरिया है, 5 एकड़ में अगर आपको लेआउट डालनी है तो सबसे पहले तो आपको प्लॉट एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेल आउट कैसे करना है। अब उस पे क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको कितना % किस चीजों के लिए छोड़ना पड़ेगा। लाइक रोड के लिए कितना % छोड़ना है आपको, रोड की विड्थ कैसे डिसाइड करनी है, कितनी लेंथ पे डिसाइड करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेरा से पास करवाना है कि नहीं करवाना है, टीएनसीपी के क्या रूल्स हैं, हाउसिंग बोर्ड्स के क्या रूल्स हैं और नगर निगम के क्या रूल्स हैं। सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप खुद का ऑफिस बिल्ड करना चाहते हैं तब। ओके, तो सारी की सारी ये मान के चलिए कि अगर आप इस सेशन में ये मान के चलिए कि मैं आपका पूरा माइंड सेट करने वाला हूं कि अगर आप ऑफिस ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज आपको होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें नॉलेज क्या किस चीजों का लेना है और हम फिर सीखते जाते 3-4 साल हो जाते हैं, फिर भी हमारे हाथ में उतना आउटपुट नहीं होता है। ऐसे बहुत से मेरे खुद फ्रेंड्स हैं और ये जो भी जितना ही मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये सारी एक्सपीरियंस बेस पे ही चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कोर्स इस तरीके का नहीं होने वाला है कि मैंने किसी एरिया को लिया है ना और उस पे ही मैंने आपको वर्किंग करके बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मेरे जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पे मैं आपको सारी की सारी ड्राइंग्स बताने वाला हूँ और रियल प्रोजेक्ट्स पे सारी वर्किंग बताने वाला हूँ, प्लस साइट की चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, किस साइट पे जाना है तो विद फोटोज में आपको बताने वाला हूँ उसी प्रोजेक्ट की जो कि रनिंग प्रोजेक्ट्स है। ओके, अगर मैं रिकंसिलेशन, 8th पॉइंट इज रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन क्या होता है? एस्टिमेट और बिलिंग। जब भी आप एस्टिमेट और बिलिंग करते हैं तो एस्टिमेट और बिलिंग फर्स्ट टाइम में हो जाता है। एस्टिमेट और बिलिंग ये का पार्ट
आपकी बिल्डिंग में कई बार रिवीजन होता है, रिवीजन भी होता है और पार्ट में होता है। एक बार में एस्टिमेट नहीं होता, एक बार में बिलिंग नहीं होती। एस्टिमेट भी कई प्रकार के होते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी होता है, डिटेल्ड भी होता है, रफ एस्टिमेट भी होता है। बिलिंग की अगर मैं बात करूं तो बिलिंग भी आपकी कई स्टेज पे होती है। जितना वक्त आपका होते जाता है उस हिसाब से बिलिंग होती जाती है। ओके, रिकंसिलेशन वर्ड का मीनिंग ये है कि जब भी आपने बिल, मान लेते हैं कि कोई एक टेंडर है या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से जो भी आपने रेट डिसाइड किया था या फिर उस टेंडर का जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से आपने बिल लगा करके दे दिया, बट उसकी जो ड्यूरेशन है मान लेते हैं कि बढ़ जाती है और फिर उसके रेट में प्लस हो जाता है या फिर उसके जो आइटम है, आइटम आपके बढ़ जाते हैं बाद में। तो बिल और एस्टिमेट में दोनों में चेंजेस जो होंगे, एड ऑन्स जो होंगे, वो होता है रिकंसिलेशन। ओके, रिकंसिलेशन का मतलब यही है कि जो भी चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं एस्टिमेट या बिल, उसको नए आइटम को ऐड करके उसको रिकंसल्ट करना, उसको रिकंसिलेट करना। ओके, तो उसको हम रिकंसिलेशन बोलते हैं। 9th पॉइंट इज, ये जो अब स्किल्स मैं बताने वाला हूं ये थोड़ी डिफरेंट स्किल है, ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जितनी भी टेक्निकल नॉलेज होना रिक्वायर्ड था, ये 8 पॉइंट जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको टेक्निकल नॉलेज जो होना चाहिए, ये 8 पॉइंट उसके बिहाफ पे है। अब 9th पॉइंट से अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, तो भी आपको केवल टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपकी खुद की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। क्योंकि केवल टेक्निकल नॉलेज हो गया, आपसे क्लाइंट हैंडल ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे आप अपना ऑफिस रन करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लाइंट हैंडलिंग स्किल कैसे करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, क्लाइंट के माइंडसेट को आसपास कैसे समझना है, ये चीजें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना एलेबोरेट कर सकूं, जितना समझा सकूं, उतनी चीजें आपको क्लैरिफाई करते जाऊं। ओके, लीडरशिप स्किल्स आपकी होनी ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल्स है। लीडरशिप स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपना खुद का या फिर कंपनी में भी वर्क करेंगे, तो जब भी आप अपना ऑफिस ओपन करेंगे तो आप उसकी मेन बॉडी होंगे, आपके अंडर आपके इंटर्न्स होंगे और भी आपका स्टाफ होगा। सभी को कैसे आपको लीडरशिप आपको कैसे करना है, आपको कैसे उनको जो उनके टास्क हैं कैसे उनको उनसे करवाना है या फिर उनको कैसे टास्क समझाना है। ओके, कि अगर आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे कौन कौन वर्क कर रहा है, किस किस स्टेज पे कौन कौन सी ड्राइंग्स बननी है, किस किस स्टेज पे कौन कौन सी ड्राइंग्स इशू होनी है, ये सब लीडरशिप स्किल पे ही आती है। तो लीडरशिप स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोई आपको आकर के सिखा करके नहीं जा सकता है। लीडरशिप स्किल्स केवल आपको बता सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स आपको खुद ही बिल्ड करनी होंगी अपनी पर्सनालिटी में। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है अपनी डे टू डे लाइफ में, और अगर आप साइट पे जाते हैं तब कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करना है, आपको लेबर से कैसे बात करना है, अगर आपके ऊपर कोई और हेड है उससे कैसे बात करना है, अगर आपके अंदर कोई इंटर्न्स हैं, आपके अंदर कोई वर्कर्स हैं, उनसे कैसे बात करना है, कैसे उनको वर्क समझाना है, सारी चीजें। बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं या नहीं हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर का 100% नॉलेज हो, बट आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से काम करवा सकते हो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तब। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, कि मान लेते हैं कि G+2 का स्ट्रक्चर है या G+1 का स्ट्रक्चर है, अब G+1 या G+2 के लिए आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर नहीं करोगे, क्योंकि आप इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को काम देते रहेंगे या फिर हायर करते रहेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस होते जाएगा। और अपने प्रॉफिट को हमेशा जितना हो सके प्लस में ही ले करके जाना है।
प्लस में लेकर के जाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर का, आपको खुद से बनना चाहिए एस्टिमेट, खुद से आपको डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाने आने चाहिए, खुद से आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी बनाते आना चाहिए। जब तक आपसे नहीं आएंगी तो आप बताओगे कैसे वर्कर्स को। देखिए इस सेशन का सीधा सा मोटिव ही यही है कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं, और मोस्टली जो सभी गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद अब इंजीनियर्स के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट्स के पास जाएंगे, 3 साल अपने वेस्ट करेंगे, 4 साल अपने वेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी तब वो अपना ऑफिस स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं, मैं आपको सारी चीजें पहले ही बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आप उसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में लाना है, या तो आप साइट पे अगर आप वर्किंग हो या फिर आप अपने परसुइंग हो तब भी कैसे चीजें अपने बिहेवियर में लानी है, कैसे ड्राइंग्स पे ध्यान देना है। कम से कम लो आपके माइंडसेट पहले से हो जाएगा। जब तक माइंडसेट नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको खुद का ऑफिस इस्टेब्लिश करना है कि आपको कंपनी में जाना है। केवल सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहां पे आपके पास दोनों करियर ऑप्शन अवेलेबल है। केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है। बट मेरा मेन जो डिस्कशन का सेशन है और मेन जो मोटिव है वो खुद का ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए ही है, क्योंकि आज के टाइम पे सभी अपना ऑफिस सिविल इंजीनियरिंग करता ही इसीलिए है, मोस्टली सिविल इंजीनियर, कि खुद का ऑफिस बिल्ड कर सके। ओके, 70%, बट कुछ परसेंट ये भी होते हैं कि आपको कंपनी में ही वर्क करना है। तो कंपनी के लिए भी क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो भी मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक work in company, you can get placement after graduation. ड्राइंग एनालिसिस, ड्राइंग एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको खुद से ड्राइंग नहीं बनानी होती। जब भी आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करने के लिए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो आपका कैनाल का हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, ओके, तो आपको खुद से ड्राइंग कभी नहीं बनानी होती किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में। आर्किटेक्चरल फर्म की बात अलग होती है, इसमें भी फील्ड्स होती हैं। आर्किटेक्चरल फर्म्स अलग होती हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां अलग होती हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड अलग होती हैं, लिमिटेड अलग होती हैं, और कुछ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड भी नहीं होती, केवल कॉन्ट्रेक्चुअल्स होती हैं, बट वो उनका भी टर्नओवर बहुत अच्छा होता है। तो बट उन कंपनियों में जब भी आप प्लेस्ड होते हो तो आपको खुद से ड्राइंग्स कुछ भी नहीं बनानी होती। बट आप खुद का ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको पता है कि खुद ही ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट होगा। ओके, तो ड्राइंग्स एनालिसिस इन द सेंस आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं सारी की सारी को आपको रीड कैसे करना है। जब तक आपसे रीडिंग नहीं आएगी तो आप एग्जीक्यूशन के लेवल पे कैसे आओगे। तो कौन कौन सी चीज उस पर ध्यान रखनी है, कैसे उसको रीड करते हैं, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि रियल होंगी, वर्किंग प्रोजेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने वर्चुअली आपको बना दिया कोई भी प्रोजेक्ट और फिर उस पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। नहीं, सारी की सारी जितनी भी चीजें मैं आपको ड्राइंग्स एक्सप्लेन करूंगा, मेरे वर्किंग प्रोजेक्ट्स ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको शो करूंगा सारी की सारी ड्राइंग्स, लाइक ऑटोकैड पे मैं आपको जस्ट शो करता हूं नॉर्मल, लाइक दिस। एक ये छोटा सा ही एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि 1800 स्क्वायर फीट का है। प्रपोज ड्राइंग, सबसे पहले अगर कोई भी ड्राइंग बनेगी तो प्रपोज ड्राइंग बनेगी। इसमें आपका पोर्च कहाँ पर रहेगा, बेडरूम कहाँ पर रहेगा, आपके सारे यूनिट्स कैसे आपको सिस्टमेटिक करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको प्लानिंग स्किल पे ही मैं आपको 3 दिन में सिखाऊंगा। केवल 1 दिन में नहीं आएंगे, उसके लिए 3 दिन लगेंगे, हमको 2 से 3 दिन लगेंगे। तो वो कैसे करना है वो सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके लिए भी 10 प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, लाइक दिस। सेकेंड ड्राइंग से अगर मैं बात करूं तो लेआउट कैसे बनाना है, लेआउट पे कौन कौन सी चीजें आपको इस पे मेंशन करना है, कौन कौन सी चीजें मेंशन नहीं करना है। ओके, लेआउट ड्राइंग होगी आपकी फाउंडेशन की डिटेल्स होगी, फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड करना है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनकी लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिविल इंजीनियर्स अगर आप हैं
तो आपसे लोड कैलकुलेट करते भी आना चाहिए, मटेरियल कैलकुलेशन भी आना चाहिए, एस्टिमेट भी आना चाहिए। तो जब वो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ। जब तक आप तो वो बेसिक चीजें नहीं आएंगे तो आप स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, आपको ये फाउंडेशन प्लान्स है, आप देख सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग है, साइज कैसे डिसाइड करना है, डेप्थ क्या होगी, एरिया कैसे निकालते हैं, फुटिंग कैसे प्रोवाइड करना है, टाइप क्या होते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ड्राइंग्स पे बनाना कैसे है सबसे बड़ा पार्ट। केवल मैं सिखाना मतलब ये नहीं कि मैं केवल चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं ओरली और बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको वर्किंग पे कैसे करना है, अगर आपके पास एक्चुअल वर्किंग पे आप ऑटोकैड पे वर्किंग कैसे करोगे, वो सारी चीजें भी बताने वाला हूँ। एक एक ड्राइंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक दिस देख सकते हैं फाउंडेशन डिटेल्स, कितनी डिटेल्ड देना होता है, कितनी स्पेसिफाई करना है, कौन कौन सी चीजें नहीं करना है। ओके, देखिए लाइक दिस ऑल ड्राइंग्स सारी की सारी बना करके बताने वाला हूं। कॉलम डिटेल्स, प्लिंथ डिटेल्स, लाइक दिस। बीम डिटेल भी दो टाइप से कर सकते हैं, टिपिकली फ्लोर डिटेल्स होता है और आप इंडिविजुअल एक एक बीम को भी डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक एक बीम डिजाइन करना प्रेफर करता हूँ। ओके, क्योंकि टिपिकल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, चाहे आप टिपिकल प्लानिंग मैं बोलूं, चाहे टिपिकल फ्लोर बोलूं, या फिर टिपिकल वर्ड यूज करता हूं। टिपिकल इन द सेंस वही चीजें मल्टीपल हो जाएंगी। मान लेते हैं कि आपने एक फ्लोर प्लान किया हुआ है, कमर्शियल की मैं बात करता हूँ। कमर्शियल में आप देखेंगे मोस्टली क्या होता है, एक फ्लोर प्लेट होती है और वही वही हमारी कई बार मल्टीपल अप्लाई हो जाती है। मतलब टिपिकल प्लानिंग जैसा आपका फ्लोर प्लेट एक है, वैसी प्लानिंग आपकी मल्टीपल फ्लोर्स पे होते जाएगी, वो टिपिकल होता है। ओके, स्टेयरकेस डिटेल्स, सेक्शन कैसे बनाना है, सारे सेक्शंस बना करके मैं बताने वाला हूँ। एक्स सेक्शन, वाई सेक्शन कि कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, डिटेल्स कैसे देना है। देखिए सेक्शन देखिए, एक एक ड्राइंग, ये आपकी लिंटेल डिटेल्स है। लिंटेल डिटेल में भी सेक्शन बना करके देना है। कितना डिटेल्ड आप दे सकते हो, कितना डिटेल्ड नहीं दे सकते, आपकी ड्राइंग स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेबल चीजें दोगे, जितने ज्यादा मेंशन करोगे चीजें, उतनी ही आपकी साइट पे जो गलतियां होने के जो चांसेस होते हैं वो आपके कम होते जाएंगे। ओके, मैं केवल बोलते जा रहा हूँ। मुझे प्लीज आप लोग हाई करिए या फिर मुझे जस्ट रिव्यू दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, या फिर मैं तरीका चेंज करूं। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाय ऑल ऑफ यू सिविल इंजीनियर्स, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। मुझे आप प्लीज अपना रिव्यू दीजिए कि आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सर सेक्शन ड्राइंग्स दिखाइए इधर, शो नहीं हो रही सर। Slide is not changing, madam. Not changing. Not Line changing. show Slide is नहीं हो not रहा है changing. सर। कुछ भी शो नहीं हुआ सर अभी तक, आपने जितना भी बताया। जी नहीं हो सर, रहा। स्लाइड जी फ्लो नहीं हो रहा है आपका, बस सेकंड स्लाइड के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो स्लाइड शो नहीं हुई, ऊपर से चैट भी डिसेबल थी, ऑडियो ऑप्शन भी तो नहीं हो रही है। totally disabled sir. Totally disabled sir. और चैट भी ऑफ है तो कोई मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं। Okay now.
आई थिंक अब ऑडियो म्यूटेड है. Now I am audible. Sorry for that. Yes, sir. स्क्रीन सभी को विजिबल है? Manish sir, screen is visible to all of you? Yes, yes sir. Okay. तो अभी आप जैसे ये स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं. ओके. सबसे पहले अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं तो आपका प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको करना होगा प्रपोज प्लानिंग. प्रपोज प्लानिंग इन द सेंस, प्रपोज ड्राइंग जो होती है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. सबसे जो पहली ड्राइंग बनेगी जिसमें Excuse me, sir, you are on mute. लाइक दिस, कि आपको डायमेंशन शो करना है, आपको सेंटर लाइन शो करना है. ये जो आप 3 इंच 2 इंच देख रहे हैं, ये डिफरेंसेस होता है. लाइक जब भी आपका कॉलम की फेसिंग चेंज होती है या तो कभी आपके कॉलम का साइज चेंज होता है तो सेंटर लाइन में आता है डिफरेंस. वो डिफरेंस को भी आपको मार्क करना है. ओके. ये कॉलम का ओरिएंटेशन इन द सेंस जो आपका फेस होता है, कि आपको वर्टिकल रखना है या तो आपको हॉरिजॉन्टल करना है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कॉलम की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं. लाइक दिस, देख पा रहे हैं सभी? कॉलम नंबर डालना है आपको, सारे के सारे डायमेंशन शो होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, लेआउट के लिए जाएंगे, तो आप ही जाने वाले हैं. तो जितनी ज्यादा उसमें डिटेल और जितनी ज्यादा आपको उसमें डायमेंशन शो करेंगे तो आपके लिए ही वो फीजिबल होगी, ज्यादा एग्जीक्यूटेबल होगी और आपके लिए थोड़ा इजी होगा चीजें साइट के लिए. फाउंडेशन की बात करूं, फाउंडेशन का टाइप के अकॉर्डिंग सारी डिजाइनिंग होती है, जो कि डिपेंड करता है कि सॉइल स्ट्राटा कैसा है, जो कि सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके. ये आप देख सकते हैं, तो ये आइसोलेटेड फुटिंग है. इसका साइज क्या होता है, इसका एरिया कैसे डिसाइड करते हैं हम, डेप्थ क्या होती है, रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और वर्किंग ड्राइंग्स पे हमें क्या क्या चीज शो करके देना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी चीज आप ड्राइंग पे शो करके देते हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ड्राइंग्स, जो कि आप तो टेक्निकल हैं बट साइट पे सभी टेक्निकल हैं, ये कभी एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि गलती वो करेंगे और नाम आपका आएगा. तो ड्राइंग्स पे क्या क्या चीजें देनी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें नहीं देनी है. ओके. फाउंडेशन डिटेल में डिटेल्स किस तरीके से देना है, सब प्रेजेंटेशन का तरीका आपका होगा, स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, कितना करना है, और साइजेस क्या होने चाहिए, सारी चीजें. ये स्ट्रक्चर का पार्ट है. बट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर को ही करने के लिए आपको 8 से 9 ड्राइंग लगती है. ठीक है. टोटल हमारी, अगर हम बिल्डिंग में किसी प्लानिंग करने जाते हैं, सारी की सारी ड्राइंग्स बनाने के लिए जाते हैं, तो 16 से 19 ड्राइंग बनती है. वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल्ड दे रहे हैं. तो 16 से 18 ड्राइंग में आपकी 8 से 9 ड्राइंग जो होगी वो आपकी स्ट्रक्चर की ही होंगी. ओके. बट 21 डेज में, सॉरी फॉर दैट, 21 डेज में स्ट्रक्चर बस हम कवर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को केवल बेसिक ही समझेंगे. आर्किटेक्चरल का पार्ट हमारा मेजर होगा और
आर्किटेक्चरल की ड्राइंग्स को कैसे बनाना है, लाइक वो भी मैं अभी आपको ड्राइंग पे ही शो करूंगा, ड्राइंग पे भी शो करूंगा, और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए लाइक इसका सेक्शन देखिए, लाइक दिस, हाइट कितनी आएगी, लैंडिंग कितनी आनी है, विड्थ कितनी होनी है, एक एक चीज है स्पेसिफाई, जितनी भी स्पेसिफाई देंगे उतनी ही ज्यादा एग्जीक्यूटेबल होगी ड्राइंग। ये केवल स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं मैं। स्लैब डिटेल देखिए, स्लैब की थिकनेस क्या होनी है, उसके मेन बार क्या होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होनी है, ग्रेड क्या होना है, क्रैंक कैसे प्रोवाइड करना है, संकन कैसे कहाँ प्रोवाइड करना है, क्या उसकी डेप्थ होनी चाहिए, बीम का साइज कैसे डिसाइड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीम की डेप्थ कैसे डिसाइड करना है, उसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें मैं बेसिक बताऊंगा इस 21 डेज में, क्योंकि 21 डेज में हर एक चीजें करना बहुत ही ज्यादा, ये मान के चलिए कि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बट आपको समझ में ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। तो इसके लिए हमारे दो कोर्सेस भी आ सकते हैं, कि आर्किटेक्चरल का अलग और स्ट्रक्चर का अलग। अभी मैं आपको आर्किटेक्चरल की ड्राइंग शो करने वाला हूं। आपको फाइल को कैसे सही से ऑर्गेनाइज करके रखना है, लाइक दिस, फाइल को ऑर्गेनाइज करके कैसे रखना है, वो सारी चीजें भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनीष सर अगर कहीं पे भी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी तो प्लीज मुझे तुरंत अपडेट करिएगा। ओके, लाइक इलेक्ट्रिकल, अगर मैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग डिटेल्स, सैनिटरी डिटेल्स, फायर डिटेल्स अगर रिक्वायर्ड है कमर्शियल में तो उनकी डिटेलिंग कैसे करना है, उसके लिए भी अलग से स्पेसिफाई ड्राइंग्स होती हैं, सब क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो कैसे बनाना है, इस इतने में ही सारी चीजें शो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। My screen is visible or not? Like this. देखिए प्लम्बिंग डिटेल देखिए, ये सब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में आएगा। ओके, अब मैं बात करूं कि अगर आप 21 डेज, चलिए पीपीटी, पहले हम पीपीटी खत्म करते हैं, देन उसके बाद में सारी की सारी ड्राइंग्स आपको फिर शो कर दूंगा, अदरवाइज पीपीटी रह जाएगी। कंपैरिजन के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप खुद का ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड स्किल कौन कौन सी है, और आप कंपनी में काम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी है। लाइक मैं बीबीएस पे आ चुका था, डीपीआर क्या होता है, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर भी दो टाइप के होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में, मैं बैक टू दी पॉइंट आ रहा हूँ, वर्क इन कंपनी, मैं ड्राइंग केवल शो कराने के लिए थोड़ा सा टाइम आपका लिया मैंने, मैं बैक जहां पर हम थे वर्क इन कंपनी पे, अगर आप कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो कौन कौन सी एक्सपर्टीज और स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले इसको हम फिनिश करने की कोशिश करूंगा फास्ट, मैंने उसके बाद में आपको शो भी करूंगा। ओके, बीबीएस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डीपीआर दो टाइप के होते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डीपीआर मतलब डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जितना भी आप वर्क करेंगे पर डे का आप अपडेट करेंगे। डीपीआर होता है पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जितने भी डिटेल्स रहेगी उस सारी डिटेल उस डीपीआर में होती है, जो कि कंसल्टेंसी द्वारा बनाया जाता है। बिडिंग डॉक्यूमेंट का नॉलेज जब आप कंपनी में जाएंगे तब ऑटोमेटिक हो जाएगा। मटेरियल नॉलेज इन द सेंस, मटेरियल नॉलेज का जो भी आपकी साइट पे मटेरियल यूज हो रहा है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज कैसे गेन करना है, उसके क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, साइट पे कैसे मटेरियल को चेक करेंगे साइट पे ही, वो कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इन दी कोर्स। ओके,
अगर मैं सारी ड्राइंग्स की टाइप ऑफ ड्राइंग्स की बात करूं नंबर में, तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। मनीष सर प्लीज अपडेट मी। हेलो हेलो सर आपकी स्क्रीन विजिबल है, बस आपने जो स्क्रीन शेयर करी है वो विजिबल नहीं है। आपको अभी जो टाइप ऑफ ड्राइंग है वो शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? पीपीटी शो हो रही है? सर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? बट मैं तो देख सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंडिविजुअल बार बार शो कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी टाइप ऑफ ड्राइंग शो हो रही है? यस सर। ओके, टाइप ऑफ ड्राइंग, आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स कितनी होती हैं, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स कितनी होती हैं? एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले होती है प्रपोज ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग्स, डोर एंड विंडो डिटेल्स, स्टेयर के डिटेल्स, सेक्शंस एक्स और वाई, प्लम्बिंग डिटेल्स, फिक्सर डिटेल्स, कंड्यूट डिटेल्स। कंड्यूट डिटेल क्या होती है? जब भी आपका स्लैब होता है, स्लैब से पहले जो स्लैब पर जितने भी आपके वायर जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के पाइप जो डालते हैं उसकी डिटेल्स जो रहती है वो कंड्यूट डिटेल्स होती है। सैनिटरी डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, मम्टी फ्लोर इन द सेंस आपका टावर होता है, टावर की डिटेल्स कैसे देना है और उस पे स्पेशल एलिमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वर्किंग एलिवेशन इन द सेंस जब भी अगर आपका क्लाइंट किसी भी बिल्डिंग का एलिवेशन डिजाइन करवाता है तो साइट पे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसके जो लेवल्स हैं, कितना कौन सा एलिमेंट आपको सामने की तरफ उभारना है, कितना आपको बैकवर्ड करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, प्लस मटेरियल डिटेल्स, वो होती है वर्किंग एलिवेशन। ओके, स्ट्रक्चर डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेआउट आएगी। लेआउट, फाउंडेशन डिटेल में भी फाउंडेशन प्लान और फाउंडेशंस की जो डिटेल्स जो कि मैं अभी ऑलरेडी शो कर चुका हूं, कॉलम डिटेल्स, ग्राउंड बीम डिटेल्स, प्लिंथ डिटेल्स, staircase details, lintel details और slab details and the tower details also for the structure part. Okay, तो ये टाइप ऑफ ड्राइंग्स आपको, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपसे ये सारी की सारी ड्राइंग्स बनाते हुए आना चाहिए। इन दिस सेशन वी विल कवर all the architectural drawings in the 21 days. After 21 days session, I will conduct one more class that will be on the estimate of that project, जिसकी मैं सारी की सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना करके और एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसी का ही एस्टिमेट। ओके, अगर स्ट्रक्चर में भी अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर तो इसमें कवर करूंगा ही, बट अगर आपको स्ट्रक्चर की डिटेल्स भी कैसे करना है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी की सारी ड्राइंग्स बनाना है, सारा का सारा नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए अलग से एक कोर्स और हम फ्यूचर में लेकर के आएंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन 21 days I will explain you all the things that will be required if you are planning to open your own office. Okay, अब मैं 21 days में जो आपको चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं उसको एक रिव्यू करना चाहूंगा। लाइक फर्स्ट डेज में आप क्या क्या सीखेंगे, सेकंड डेज में क्या सीखेंगे, फोर्थ डेज में क्या सीखेंगे। फर्स्ट डे में आप सीखेंगे कि जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, एरिया वो कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे उनको ओवरव्यू टाइप ऑफ एरिया कितने टाइप के होते हैं, लाइक बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, आपका प्लॉट एरिया, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग प्लानिंग और द सीरीज ऑफ द ड्राइंग इशू। फर्स्ट डेज में आप ये सीखेंगे। सेकंड डेज में यूनिट कन्वर्शन एंड द स्पेशल एलिमेंट और द mandatory skills for the civil engineers also, just overview for the second day. यूनिट कन्वर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ यू आर एन इंजीनियर, क्योंकि आप मीटर पे भी काम कर सकते हैं और एपीएस पे भी काम कर सकते हैं और एमकेएस पे भी काम कर सकते हैं। एसआई पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम वर्किंग करते हैं,
बट आर्किटेक्चरल जो वर्क होता है वो सारा का सारा FPS पे ही होता है. ओके, in the third day we will learn all the residential planning कि रेसिडेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स क्या होंगे. एक दिन वो करवाने के बाद सेकेंड डे मैं आपको एक टास्क दूंगा जिसमें आपके द्वारा की गई प्लानिंग पे ही डिस्कशन होगा. सेकेंड डे केवल डाउट एंड डिस्कशन सेशन. उससे क्या होगा, उससे आपके जितने भी डाउट्स हैं जो भी आपको जनरेट होंगे बस उसी समय रिजॉल्व होते जाएंगे. पूरी कोशिश यही रहेगी. दैट्स व्हाई फर्स्ट डे हम प्लानिंग के एस्पेक्ट सीखेंगे, प्लानिंग कैसे करना है. सेकंड डे आपने जो प्लानिंग करेंगे, जो कि मैं एरिया आपको दूंगा, उस पर प्लानिंग जो भी करेंगे उस पर ही डिस्कशन करेंगे ताकि सभी का माइंड में जो भी डाउट जनरेट होंगे उन सारी की सारी डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर सकूं. फिफ्थ डे कमर्शियल प्लानिंग पे बात करेंगे. देखिए, कमर्शियल और रेसिडेंशियल पे ही हम जनरली फोकस करेंगे क्योंकि जो स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं या फिर अदर टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं सबको एक्सप्लेन करना बहुत ही टफ हो जाएगा इन 21 डेज. बट बेसिक सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा. कमर्शियल में क्या डिफरेंसेस होता है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या मेजर थिंग्स हैं जो कि चेंज हो जाती हैं. कमर्शियल प्लानिंग करेंगे फिफ्थ डेज पे. रैंप पे कैसे प्रोवाइड करना है, उसका रेशो क्या रखना है, उस पे स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, लिफ्ट साइजेस क्या रखनी है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स. ओके, एरिया क्या होना है, सारी चीजें. इन द 6 डेज उसका डाउट एंड डिस्कशन सेशन लाइक द रेसिडेंशियल. सेवेंथ डे स्टैंडर्ड साइज. हर बार सारी चीजें कैलकुलेट करना नहीं होता है. स्टैंडर्ड साइजेस जो कॉलम बीम के और स्टेयरकेसेस के होते हैं या सारे एलिमेंट्स के होते हैं बिल्डिंग में, वो सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. प्लेसमेंट ऑफ द कॉलम कैसे प्लेसमेंट करना है, उसका ओरिएंटेशन क्या होना है, उसकी डिस्टेंस क्या होनी है, दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस क्या होनी है, सारी चीजें. वर्किंग ड्राइंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. वर्किंग ड्राइंग्स में सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं प्लानिंग की. ओके, द 8th डे we will learn layout, how to make layout on the AutoCAD and how we will execute on the field. बनाना कैसे और साइट पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, गुनिया किस तरीके से बनाना है, उस पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ड्राइंग पे ही आपके बता दूं. जब आप साइट पे जाएंगे तो साइट पे भी आपको वो चीजें समझ में आएंगी. इस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ. डोर एंड विंडो डिटेल्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे बनाना है, सारी डिटेल्स. स्टेयरकेस की डिटेल्स, स्टेयरकेस में कैसे लोहा प्रोवाइड करना है, उसका सेक्शन कैसे बनाना है, सारी चीजें. टाइप ऑफ सेक्शन एंड द डिजाइन क्राइटेरिया. सेक्शन एक सेक्शन होता है और वाई सेक्शन होता है. अगर हम किसी बिल्डिंग को एक्स एक्सिस से काटते हैं तो कैसे वो बिल्डिंग विजिबल होगी, कैसे दिखेगी, और अगर वो हम वाई सेक्शन से काटेंगे तो बिल्डिंग किस तरीके से दिखेगी. वो सबसे टफ पार्ट होता है सेक्शन का. वो मैं ट्राई करूंगा कि जितने इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं, उतने इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. इन 11th डे सेक्शन ड्राइंग्स इन द डिस्कशन. सेक्शन ड्राइंग इन द सेंस जो आप एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन करेंगे उसका डिस्कशन और लेवल एंड द बाउंड्री डिटेल्स ऑल्सो. क्योंकि सेक्शन बहुत ही टफ पार्ट होता है, उसके लिए एक दिन हम केवल डिस्कशन के लिए लेंगे जो कि 21 डेज होगा. 12th डे में हम प्लम्बिंग और सेप्टिक टैंक की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि प्लम्बिंग अगर डिटेल्स आपको करना है तो कौन कौन से कितने डाई के प्रोवाइड करने हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए. सेप्टिक टैंक के कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू मेंबर, कहाँ पे उसको लोकेट करना है, क्या हाइट रखनी है, क्या उसकी डेप्थ होनी चाहिए, सारी चीजें. सैनिटरी डिटेल्स, सैनिटरी प्लम्बिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, सारी चीजें. 14th डे कंड्यूट डिटेल्स. कंड्यूट डिटेल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. जब हम स्लैब डालने के लिए प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हमको इलेक्ट्रिकल के लिए पाइप बिछाना होता है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ड्राइंग बनती है. अदरवाइज आपका जो इलेक्ट्रीशियन आएगा वो उसके हिसाब से करके चला जाएगा, क्योंकि फिर बाद में स्विचेस में प्रॉब्लम आती है. ओके,
इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल डिटेल्स इतनी ज्यादा स्पेसिफाई बनाना है कि अगर एक स्विच है, एक स्विच में भी अगर एक स्विच बोर्ड है तो एक स्विच बोर्ड में कितने स्विचेस होने हैं, कितने सॉकेट होने हैं, किसका कनेक्शन किस पे होना है। सॉरी लाइट जा चुकी है, सॉरी फॉर दैट। सारे screen is visible. Hello. Yes, sir. Okay, thank you. Where we were? 16 days। 16 डेज में टावर की डिटेल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर रिक्वायर्ड होता है तो उसमें कैसे डिटेल्स हमको प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी हमको ड्राइंग्स बनानी होती है, कौन कौन से नॉलेज हमको रिक्वायर्ड है। 17 डेज पे रिविजन्स ऑफ ऑल दी ड्राइंग्स, जितने भी हम ड्राइंग्स बना चुके हैं आर्किटेक्चरल की सारी ड्राइंग्स पे एक डिस्कशन डे होगा, जिसमें आपके जितने भी डाउट और जितने भी आपके डाउट रहेंगे मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम थोड़े डिफरेंट सेक्शन पे आ जाएंगे प्लान ड्राइंग्स के हट के, लाइक बीबीएस आपका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बीबीएस क्या होता है और क्यों रिक्वायर्ड होता है। 19 डेज पे हम मटेरियल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है, कि मान लेते हैं कि कंक्रीट है, कंक्रीट में कितना रेत है, सैंड है, कितना उसमें स्टील है, कितना आरसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, कितना परसेंटेज उसमें स्टील है, कितना परसेंटेज उसमें एग्रीगेट है, कितना परसेंटेज उसमें सीमेंट है और वाटर ऑल्सो, उसको कैसे स्पेसिफाई करना है, साइट पे कैसे मटेरियल को चेक करना है, प्लस मटेरियल कैलकुलेट कैसे करना है। कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट फ्लोर बस बिल्ड करना है या फिर ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्ड करना है, तो उसमें कितने ब्रिक लग जाएगा, कितना स्टील लग जाएगा, कितना आपका सैंड लग जाएगा और कितना एग्रीगेट लग जाएगा, कितना सीमेंट लग जाएगा, उसकी मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थंब रूल्स आपको हमेशा पता होने चाहिए, क्योंकि हर बार हम सारे डिजाइन क्राइटेरिया करते नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि एक एक चीजें कई बार हमको रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि थंब रूल ही होते हैं उसके लिए। 20 डेज में 100 इंपोर्टेंट पॉइंट का एक सेशन होगा और उसमें सारे के सारे जितने भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लाइक कुछ ध्यान रखने वाली बात होती है, जैसे कि लैपिंग लेंथ होती है, आपके एंकरेज लेंथ क्या होती है, लैप कैसे प्रोवाइड करना है, बेंड कैसे प्रोवाइड करना है, चेयर्स क्या होती हैं, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें जब तक पता नहीं होता, जब तक कि हम ऑन फील्ड नहीं जाते और एक टाइम तक एक्सपीरियंस गेन नहीं करते। प्लस मिस्टेक्स इन दी साइट पे जब भी आप जाएंगे तो मिस्टेक्स कैसे चेक करना है। ओके, 21 डेज पे डाउट एंड डिस्कशन सेशन होगा, जो कि ओवरऑल जितने भी हमारा सेशन हुआ है उस पर जितने भी आपको डाउट्स होंगे वो सारे के सारे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 22 डेज इज द स्पेशल क्लास दैट विल बी ऑन डिटेल्ड एस्टिमेट, जो कि उसी प्रोजेक्ट का होगा जिसकी मैंने सारी की सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपको बना करके बताई है। देखिए मैंने आपको सारी की सारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी आपको शो कर दी हैं, सारी की सारी आपको स्ट्रक्चर डिटेल्स भी शो कर दी कि आपको बनाना कैसे है, ड्राइंग लेवल पे कैसे लाना है और एग्जीक्यूशन लेवल पे भी कैसे लाना है। प्लस स्पेशल क्लास में मैं आपको उसी का एस्टिमेट कैसे करना है, डिटेल्ड और एब्स्ट्रैक्ट कैसे करना वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो होप ऑल ऑफ यू गाइस I explain all the aspect and the prospect regarding this session। प्लानिंग का जो पार्ट है और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सारी की सारे मैं जब एक्चुअल क्लास या हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें 100 डेज में मैं 100 पॉइंट में सारे कवर कर दूंगा। जितना भी आप 21 डेज में ये मान के चलिए कि अगर आप ऑफिस ओपन करना चाहते हैं
या फिर किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आप सारी के सारी ड्राइंग बना सकते हैं आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस कोर्स. ओके, तो दिस सेशन आई एम एंडिंग हियर. हेलो, सॉरी लाइट नहीं है. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मुझे 2 मिनट चाहिए आप सबसे डिस्कशन के लिए. सभी अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी बोलेगा. ओके, अगर आपको डिस्कशन से सेशन से हेलो 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 सॉरी, हेलो हेलो, am I audible? Hello. Yes, I can hear. Okay, so I ended this session. Okay, अब क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास कब से स्टार्ट होगी? ये 21 डेज की. जी हाँ, जो 21 डेज का हमारा सेशन जितने पॉसिबल डेज में अर्ली होने स्टार्ट होगा, वो सर आपको अपडेट कर देंगे, आपके मेल पर भी और आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी. मोड ऑफ क्या होगा वो कोर्स का फीस क्या है? कोर्स की फीस भी आपको अपडेट होगी. ओके, कोर्स की फीस भी सर अपडेट करेंगे आफ्टर मी. अगर आपको टेक्निकल नॉलेज या फिर ड्राइंग से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सीखना हो और मैं आप उसमें कवर ना किया हूं, उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट है तो आप प्लीज अभी मुझसे पूछ सकते हैं. उसके बाद कब तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा 21 डेज का? मनीष सर विल अपडेट यू. ओके, it will be possibly within 10 days. I That want will be to make update. Hello. Yeah, hello everyone. I want to make one assignment announcement, like all the details about the course regarding course fee and everything, you will get it on your WhatsApp or on your mail ID. Please don't worry about that. If you are having any doubts now regarding the course, you can ask the sir. Like he is available now, you can ask all your doubts. Yes, I'm just saying that if you have any doubt regarding your regarding the session, about your technical knowledge, about the detail drawing, about the estimate, about this session technically, so you can ask me. No, any question. No question. सर, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे ये कोर्स में, तो उनका डाउनलोड लिंक क्या प्रोवाइड करेंगे? फिर डाउनलोड लिंक? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको सबसे पहले कि जब भी जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स आपको ऑटोकैड पे ही बनानी होती है. स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक स्टेटप्रो होता है और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं. स्टेटप्रो मेजर यूज करते हैं सभी, बट उनसे हम डिटेल्ड केवल हम एनालिसिस बस हमको प्राप्त होता है, उससे हमको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होती. लाइक कि आपको प्रेजेंटेबल ड्राइंग ही बन करके आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता. तो आपको खुद से सारी ड्राइंग बनानी होती. बट डाटा रिक्वायर्ड स्किल क्या है या फिर कैसे उसको बनाना है, वो केवल आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं. ओके, तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना तो इम्पोर्टेंट ठीक है, बट सॉफ्टवेयर बस सीखने से कोई मतलब नहीं है. अगर आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप सीख लेंगे, वर जब तक आपसे वर्किंग ड्राइंग्स ही नहीं बनेंगी तो सॉफ्टवेयर का सीख करके करोगे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिक जो हमारा होता है ऑटोकैड होता है. ऑटोकैड तो आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है, जिसपे सारी की सारी आपको डिटेल्स जितनी भी ड्राइंग्स बनानी है सारी की सारी ऑटोकैड पे ही बनानी है. ये अपने माइंड में क्लियर करिए. जितनी भी बनानी है आपको सब ऑटोकैड पे बनानी है. बट आपको बाकी के कोर्स, बाकी के सॉफ्टवेयर भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है.
लाइक 3D के सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, जिसके लिए अलग सभी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। चाहे हम 3D के सॉफ्टवेयर की बात करें, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर की बात करें, एस्टिमेट के लिए बात करें, या तो आर्किटेक्चरल की बात करूं, मैं आर्किटेक्चरल का सेशन पूरा लेने वाला हूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपको सीख जाओगे, सॉफ्टवेयर तो आप सीख ही जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन सीखो या तो आप ऑनलाइन सीखो। बट सॉफ्टवेयर सीखने के बाद वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाना है ये आपको कोई नहीं सिखाएगा जब तक आप फील्ड पर नहीं जाएंगे या तो किसी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के अंडर काम नहीं करेंगे तब तक। बट वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इस कोर्स में लेकर के आया हूँ, जो कि मुझे लगता है कि पहला कोर्स है जो कि प्रोटेनी लॉन्च करने वाला है, क्योंकि बिल्डिंग की सारी डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी प्रोवाइड करी है, सारी की सारी किसी भी एक कोर्स को लेकर के। तो यू ऑल लकी कि आपको ये सेशन और कोर्स प्रोवाइड होने वाला है, क्योंकि आप मार्केट में जाइए किसी के पास आप यस हेलो जी सर, जैसे कि आपने आज के सेशन में लैंग्वेज बिंगल यूज करी, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड जो सेशन होगा उसमें सर लैंग्वेज आप जैसी आपने यूज करी वही लैंग्वेज यूज करेंगे कि टोटल इंग्लिश यूज करेंगे? आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे। I will teach you in Hindi and English both, but I will explain you all the things that will be more comfortable for you and me also. Okay? तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, बट मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो फ्रेंडली रहेगा। अगर आप अभी देखें तो मैं बहुत ही ज्यादा हिंदी पे भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंग्लिश पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं दोनों को कंबाइंड पे इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, प्लस मैं आपसे कोरिलेट करता हूँ। मुझे आपसे आप मुझसे कुछ भी आपके डाउट रहे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सको, मैं आपसे फ्रेंडली वे में ही सारी चीजें टीच करने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ प्लीज ये मत रखिएगा कभी भी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कि मैं पर्सनली बताता हूँ, कभी भी सीखने के लिए पूछना अगर आपको किसी से भी पड़े तो कभी भी झिझकिए मत, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या पता उसको भी ना आए, बट वो इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसको भी एक ये डर है कि अगर मैं पूछूंगा तो वहां पर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये सोचना सबसे बड़ा बेवकूफी का काम होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरी जो लैंग्वेज होगी वो इस तरीके से होगी, मैं फ्रेंडली वे में बात करूंगा। ओके ओके, तो आई एम डन। Sir will provide all the yeah. Any doubt? Hello. हाँ sir. Yes. Sir. Hello. Yes, I can hear you. Sir, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रही है। सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको पर्सनली मेल कर दिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। सर थोड़ा बिल्डिंग एस्टिमेट के बारे में और एक बार सिलेबस फिर एक बार थोड़ा फास्ट बताइए ना, आप क्या कवर करने वाले हैं? ओके, 21 डेज का सेशन होने वाला है। ओके, 21 सेशन में मैं जस्ट 5 मिनट में सारा का सारा रिव्यू कर रहा हूँ, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गिव मी योर 5 मिनट्स, आई विल explain you all the overview of the courses. Okay, in this 21 days you will learn all the mandatory skills, हिंदी में बोलता हूँ, सारी की सारी स्किल्स जो होती हैं रिक्वायर्ड हैं एक सिविल इंजीनियर्स के लिए, चाहे आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाह रहे हैं या तो आप किसी कंपनी में वर्क करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या स्किल्स आप में होना चाहिए वो, प्लस बिल्डिंग की सारी ड्राइंग्स कैसे बनाना है, जो कि मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि कहीं पर भी आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो कि रियल प्रोजेक्ट पे सारी की सारी ड्राइंग्स आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब बट मैं आपको वो चीजें आपको सारी की सारी ड्राइंग्स बताने वाला हूं आर्किटेक्चरल की। सर वो कुछ आर्किटेक्चरल ड्राइंग मैंने का आपको सैंपल और बताया एस्टिमेट का सैंपल भी थोड़ा बताइए ना, जो आप बताने वाले ड्राइंग जी और बिल्कुल, एस्टिमेट। जी बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए I'm sharing my screen again.
just give me a second. सर क्या आप गेट फाइल भी हमारे को प्रोवाइड कराएंगे? देखिए जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड कराऊंगा, देखिए ये मान के चलिए कि मैं तो आपको सारी की सारी डिटेल्स या ड्राइंग्स दे दूं, बट जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तो आपसे नहीं बनेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे फर्स्ट डेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब मैंने आपको टास्क दिया, सेकेंड डे आप उसको बनाएंगे। ओके, तो उस पे फिर हम उस पे हमारा डिस्कशन होगा, और उसकी मैं आपको चाहिए तो मैं आपको सभी को ऑटोकैड की ड्राइंग भी दूंगा, बट बाद में। मैं पहले दे दूंगा तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपके पास पहले ही होगी। ओके, कोई बड़ा इशू नहीं है उसका। ओके बट Sir, please unmute yourself. Excuse me, sir. You are on mute. why it's again and again unmuting automatically? Sorry for that. I will provide you AutoCAD drawing, no problem, no issue. बट उससे पहले एक PDF आपको पर डे प्रोवाइड होगी। जिस भी ड्राइंग को हम बनाने वाले होंगे उससे एक दिन पहले एक आपको PDF आएगा जिस ड्राइंग पे हम काम करने वाले हैं, ताकि आप उस पे एक बार अपना खुद का ओवरव्यू कर सकें, आप उसको रिव्यू कर सकें, और फिर हम जब उस पे वर्किंग करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो समझ में आएगी। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? उस तरीके से आपके पास सारा प्रोजेक्ट का डाटा भी हो जाएगा और आप वर्किंग भी सीख जाएंगे। I'm just sharing the sample of estimate. I don't know why it's not opening. Yeah. Now, my screen is visible, all of you. Hello. Yes, sir. Hello. Am I audible? All Yes, of sir, you. you You are can audible. unmute your mouth. You can unmute your mic when if you want to ask or say something. Okay. There is no restriction on this. देखिए, एस्टिमेट भी सैंपल आपका होता है, ठीक है। आप एक ही डिटेल में सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, कि इसमें डिटेल्स इसी में ही आपने क्वांटिटी, लेंथ, नंबर, रिमार्क सभी चीजें आपने शो कर दिया। उसके बाद आपको ना एब्स्ट्रैक्ट देने की जरूरत ही नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, बट हम इस तरीके से वर्किंग नहीं करते हैं। हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं? सबसे पहले हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। ओके, ये मेरा फॉर्मेट है। इस पे प्रोजेक्ट एस्टिमेट की जो रिपोर्ट होगी, जो सबसे पहले हमारे पेज पे होगी, जिसमें केवल बेसिक डिटेल्स होगी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। सेकंड थिंग इज अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस जिसमें आपके आइटम्स की डिटेल्स होती है, क्वांटिटी होती है, ओनली क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, ओनली 4 थिंग्स।
अब्स्ट्रैक्ट में होगी। समझ पा रहे हैं? अब इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे की है, ये लाइक दिस। डिटेल्ड एस्टिमेट पे जाना पड़ेगा इसके लिए। ये है डिटेल्ड एस्टिमेट, जिसमें अगर हमें अर्थवर्क की बात करूं तो अर्थवर्क, अब अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कन्वर्शन कैसे करना है। ओके, तो कैसे करना है, लाइक मैं एक एग्जांपल बताऊं, नंबर कितना है, लेंथ विड्थ हाइट, उसकी क्वांटिटी। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो केवल हमें 3 चीज पता होनी चाहिए, लेंथ विड्थ और हाइट। ये चीजें पता है तो हमारी उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। बट हर एलिमेंट अलग तरीके से मेजर होता है, आप सबको पता है। ओके, ये देखिए सैंपल दिख रहा है सभी को। बैक फिलिंग, रूफ, आरसीसी में पीसीसी, फुटिंग, कॉलम डिटेल्स, प्लिंथ की, ये अप टू प्लिंथ है। अप टू प्लिंथ, अब प्लिंथ क्या होता है, देखिए 2 स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है और सब स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर इन द सेंस बिलो प्लिंथ, ओके, वी विल कॉल्ड इट सब स्ट्रक्चर। बट जितना भी स्ट्रक्चर आपका प्लिंथ के ऊपर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी क्वांटिटी अलग कैलकुलेट करते हैं और इसकी क्वांटिटी अलग कैलकुलेट करते हैं, बाद में दोनों का सम कर लेते हैं। सेंटरिंग कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे तो आप इसको इंडिविजुअली पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर कुछ थंब रूल्स होते हैं उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टील कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज भी कर सकते हैं, या तो फिर मैंने आपको बताया बीबीएस। ये देखिए बीबीएस का सैंपल, स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू, जस्ट से yes. Yes, sir. I need confirmation from the all civil engineers. The screen is visible, all of you. Not visible. Why they are not answering? Hello. Priyesh, am I audible to you? Priyesh, Premanand, am I audible? Manju, Ashish, please just say yes. ओके, थैंक यू। ये होता है बीबीएस का फॉर्मेट। बीबीएस या तो आप बीबीएस से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टील की क्वांटिटी, या तो फिर आप कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, या रफ कैलकुलेशंस होती हैं बोल सकते हैं आप, जिससे भी आप स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं जितना हो सकेगा उतना ज्यादा आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा इस कोर्स में, वो चीज कवर जितनी ज्यादा हो सकेगी उतनी चीजें करूंगा। ओके, तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि है तो कि 21 डेज में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 21 डेज में आपको इतनी चीजें सिखा दूंगा, बस जब भी आप सेशन पे आएंगे तो आपको एक नोटबुक अपने साथ रखना है, बस केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अदरवाइज सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बीबीएस में क्या होता है कि नंबर होता है और यूनिट वेट के हिसाब से उसकी क्वांटिटी निकल आती है, लाइक दिस। वैल्यू ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी क्वांटिटी निकल आती है। इनपुट डिटेल्स, एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो एक इनपुट डिटेल का आपको पैनल बनाना होता है। इनपुट डिटेल इन द सेंस जो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट की, कि एरिया क्या होगा, प्लेंथ एरिया क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, फ्लोर हाइट क्या है, लेंथ, सेंटर लाइन क्या है। देखिए दो टाइप से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, सेंटर लाइन मेथड से या तो फिर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से। बोथ आर द डिफरेंट मेथड्स। The long wall and the short wall method are time taking method, but central line method is not time taking, because we can calculate all the length at a time at a bunch, and then we will apply that length for many items to calculate their quantity.
ओके, तो दोनों में मेथड आपको कोशिश करूंगा कि समझा दूं। इनपुट डिटेल्स में आपको सबसे पहले इनपुट डिटेल्स का पैनल बनाना है। सेकंड शीट जो होगी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्ड में आपको क्या क्या चीज कैसे करना है, से इसमें स्टील कैसे कैलकुलेट करना है, ब्रेक की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है। इवन मैं आपको इतना तक बताऊंगा कि ब्रेक की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद उसमें नंबर ऑफ ब्रेक कितनी है, आपको कितनी ब्रेक लग जाएगी, इतनी आपने क्वांटिटी की, अब इस क्वांटिटी में नंबर ऑफ ब्रेक कितनी है, ब्रेक का एरिया कितना होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर ये सामने आपकी वॉल है, वॉल पे आपकी कितनी ब्रेक्स लगी हुई हैं, कितना है उनका एरिया, तब उनको कैसे करना है, सारी चीजें आपसे ऑलरेडी बनने लगेंगे। आप 21 डेज में ये मान के चलिए कि सिविल इंजीनियर में जितनी भी स्किल्स होनी चाहिए रिक्वायर्ड सारी की सारी आप में आ जाएंगी। पुट्टी कैसे कैलकुलेट करना, पेंट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको फ्लोर मार्बल या फिर टाइल्स का को कैसे कैलकुलेट करना है, डोर विंडो को कैसे कैलकुलेट करना है, सारी डिटेल्स। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, देखिए दो प्रकार से होता है एस्टिमेट भी, ये डिपेंड करता है कि आपको करना किस पर्पस क्या है, कि आपको अगर किसी भी एरिया के लिए अगर आपको कोई भी लोन लेना है, मान लीजिए कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसके ऊपर आपको लोन लेना है, उसके लिए भी आपको एक एस्टिमेट बना करके आपको सबमिट करना होता है बैंक में, तो वो भी एक अलग एस्टिमेट बनता है लाइक दिस। तो उसमें सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है कि एसओआर जो है, एसओआर के किस पेज में वो डिटेल्स है, वो रेट है, क्योंकि वो रेट उसके हिसाब से रहेगा। बट अगर आप खुद का कंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाएंगे तो उसके लिए थोड़ी सी माइनर सी चीजें, जो रेट है ना, रेट में जरा सा डिफरेंस होता है, बाकी कैलकुलेशन की मेथड सब सेम होती है। समझ पा रहे हैं? बस इतना ही एस्टिमेट, बस यही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि एक एक चीज की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है परफेक्ट। ओके, सो सभी को समझ में आया? You can unmute your mouth, your mic, and you can ask me anything. Otherwise, I'm leaving. Estimate समझ में आया? प्लीज मैसेज पे दो, ठीक है? आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जस्ट माइक को अनम्यूट कीजिए। और एसओआर इट मींस शेड्यूल ऑफ रेट। आई विल, देखिए हुशम, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि बेसिक नीड्स, बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। बेसिक नॉलेज के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, सारी की सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये कोर्स जो है 21 days का, I already explained all the aspect and the prospect about this project, this course. If you have any doubt still regarding this course, so you can ask me directly now. Otherwise, I'm done. Any doubt, please? Okay, I need your review also. I need your review. How it was? क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्या क्या आपको इस सेशन कैसे लगा? ओके, थैंक यू साहजेब, सॉरी। ओके, अनिकेत, थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये कोर्स अब मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होने वाला, केवल प्रो ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल होने वाला है। सो डोंट मिस आउट। ओके, आफ्टर दिस सेशन, इफ you will interested on the structure part, so I will conduct one more course for the structure, only for the structure,
कि स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रक्चर में कैसे स्टील कैलकुलेट करना है, कैसे उसकी ड्राइंग्स बनानी है। ओके, बट उससे पहले आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आनी ही चाहिए, बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए। तो आपका किसी भी चीज, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये कोर्स लेना ही है, ये मान के चलिए, क्योंकि जो नॉलेज आपको 3-4 सालों में यहाँ वहाँ सभी जगह काम करने के बाद आपको गेन होने वाला, वो सारी चीजें मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा कर भी नहीं रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई डोंट मिस आउट। ओके, ये कोर्स जरूर सभी लोग परचेस करिएगा। ओके, ओके, सो आई एम लीविंग हियर। हेलो मनीष, पल्लवी मैम, आर यू हियर? Thank you very much for joining with us, sir, and helping our learners and solving their doubts. Yeah. Thank you very much all for joining. Thank you, and the ProTrainee family also, and all of you guys. We will meet if you can. If you have still any doubt, so you can ask after this session directly with the regarding any starting date and the course material, and regarding the course charges and the pricing. You can ask directly to the Manish sir also. Okay, so I'm leaving. Thank you all of you. Bye.